Good afternoon, students. Welcome back once again to the mathematics class. In today's lecture, we are going to study some trigonometrical functions of allied angles. Already you know what are the allied angles, right? 0 degree, 90, 180, 270, multiples of 90 degree. That is multiple of 90 degrees, nothing but what? Allied angles. So initially we start from that is 90 minus थीटा. फर्स्ट क्या करेंगे 90 माइनस थीटा के बारे में देखेंगे क्या इसका अलाइड एंगल्स का वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे 90 माइनस थीटा रहे जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कैसे चेंज होंगे उसके टी रेशो से को रेशो कैसे चेंज होंगे. लेट्स सी वन बाय वन. लेट अस कंसीडर फर्स्ट let us consider a circle with a center O and a radius R. Let us consider a circle with center O and P and P dash are 2 points. P and P dash are the 2 points on the circle where PM and P dash M dash PM and P dash M dash are perpendicular to OX, right? PM क्या है perpendicular to OX है यहाँ पे और P dash M dash भी क्या है perpendicular to OX. These are all what? Perpendicular to the x-axis, that is OX. Next, let angle XOP equals to theta. Angle XOP equals to what? Theta it is. Angle XOP equals to theta and angle XOP dash equals to 90 minus theta. Angle XOP dash ये क्या है हमारा यहां से यहां तक it is a 90 degree, right? Less than 90, that is 90 minus theta. This angle, opposite angles are equal here, right? 90 minus theta XOP dash. This XOP dash is 90 minus theta, right? And the triangle P dash M dash O, the triangle P dash M dash O is equivalent to the triangle OMP, right? These two are equivalent because these are perpendicular. 90 degree it is, right? OMP is equivalent to OMP dash, or you can say P dash M dash O, which is equals to equivalent, both are equivalent to each other. Therefore we can write OM dash equals to PM. OM dash equals to what? It is PM, right? Equal होता है यहाँ पे OM dash equals to PM dash. Next one, P dash M dash equals to OM. P dash M dash equals to OM. This is equals to what? P dash M dash equals to OM. Got it? Next, OP dash equals to OP. OP dash equals to what? This one. OP dash equals to what? Which is equals to OP, right? By using these basics, we can find sine, cos, tan, cosec, sec, cot when it is 90 minus theta, right? Now first let us consider sine 90 minus theta. Now the angle is here 90 minus theta, this one, this angle. Sine 90 minus theta it is, right? It is in the first quadrant. This one is the first quadrant. This is second quadrant. This is third quadrant and this one is fourth quadrant. Already you know well this is, right? Now this is in 90 minus theta, it is means it is lies in the first quadrant only, right? अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है साइन 90 माइनस थीटा, इट इज एंगल 90 माइनस थीटा. देन रेशियो ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट? साइन रेशियो इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज P dash M dash. P dash M dash upon OP dash. OP dash. It is perpendicular, it is perpendicular, it is hypotenuse, it is base, right? Perpendicular divided by hypotenuse means P dash M dash upon OP dash. Now we have P dash M dash equals to OM. Substitute P dash M dash in place OM and OP dash equals to what? OP dash equals to, yes, OP dash which is equals to
OP it is, right? OP dash which is equals to OP. This one, third one. OP dash which is equals to what? OP. Now OM by OP, let's see what we get. OM by OP, that is base by hypotenuse. OM by OP, ये क्या है? नीचे का बेस है, राइट? राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे भी. OM divided by OP मेरा base by hypotenuse is nothing but whatever cos theta, right? Sin 90 minus theta is converting to cos theta. Similarly, cos 90 minus theta, एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा चेक कर रहे देखो अभी. cos 90, cos का रेशियो क्या होता है अभी यहाँ पे? cos मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस. इट इज OM डैश अपॉन OP डैश. OM dash upon OP dash. OM dash is PM it is, right? OP dash equals to again OP. OP dash is equals to OP. Now PM by OP, let us consider here. PM by OP. PM by OP, that is nothing but again perpendicular divided by hypotenuse is nothing but sin theta. The ratio perpendicular by hypotenuse is nothing but your sin theta. Next, similarly, tan 90 minus theta. रेशियोज कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं देखो. tan 90 minus theta, tan का रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. tan 90 minus theta है देखो. दिस एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वी आर कंसिडरिंग हियर. परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज P dash M dash अपॉन OM dash. P dash M dash upon OM dash, which is equals to P dash M dash equals to P dash M dash is OM, and OM dash which is equals to OM dash which is equals to what? OM dash which is equals to PM it is. OM dash which is equals to what here? Which is equals to PM. Let's see what we get. OM by PM. OM by PM, right? OM upon PM, which is nothing but again ratio of what? Cot theta. OM by PM, that is OM upon PM, which is equals to what? Ratio of cot theta. It is reciprocal of tan theta is nothing but cot theta. Similarly, cosec 90 minus theta, what we get here? Sec theta. Similarly, by comparing sin, cos, tan, we can write cosec 90 minus theta is sec theta, sec 90 minus theta is cosec theta, cot 90 minus theta is tan theta. अब सिंपली क्या करना है? ये तो 0 डिग्री है, 0 और यू कैन से 360 डिग्री. यहाँ पे क्या है? 90 है, 180 डिग्री है, 270 अगेन 360 डिग्री. 90 प्लस आर माइनस थीटा और 270 प्लस आर माइनस थीटा केस जब जब आता है, मल्टीपल ऑड नंबर जब मल्टीपल होता है पाई बाई 2 के साथ, n पाई बाई 2 बोलते हैं मैं यहाँ पे. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो, इट इज n पाई बाई 2. n ऑड नेचुरल नंबर रहा, n क्या है? ऑड रहा, ऑड नंबर रहा, तो क्या होता वो? साइन चेंजेस टू कॉस, टी रेशियो टू को रेशियो को चेंज हो जाता हो, राइट? अभी साइन क्या है? टी रेशियो से को रेशियो को चेंज हो रहा है. 90 माइनस थीटा है देखो. सिमिलरली 90 प्लस थीटा के साथ भी क्या होता है? अभी 4 केसेस है यहाँ पे. अब ये हो गया 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा. नेक्स्ट 270 माइनस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. 270 प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, राइट? आर यू गेटिंग मी? क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा इट इज, राइट? अभी ये तो मालूम हो गया क्या है कहानी. साइन चेंज हो रहा कॉस में, कॉस चेंज हो रहा साइन में, टैन चेंज हो रहा कॉट में, कोसेक चेंज हो रहा सेक में, सेक चेंज हो रहा कोसेक में, कॉट चेंज हो रहा टैन में. व्हेन इट इज 90 माइनस थीटा, कहां पे हो रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. देखो पूरे वैल्यूज क्या मिले हमारे को? पॉजिटिव है. देखो जस्ट सी, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा आ रहा, राइट?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते, बाय यूजिंग ASTC रूल, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी बोल के हमने रूल बनाया था। क्या बनाया था? ASTC बोल के बोले थे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऑल। साइन से लेके कॉट तक पूरे रेशियोज क्या रहेंगे यहाँ पे? फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे, ऑल आर पॉजिटिव हियर, राइट। वेराज इन सेकेंड क्वाड्रेंट कौन से पॉजिटिव रहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में? साइन एंड कॉट, साइन एंड कोसेक, टैन एंड कॉट, कॉस एंड सेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट पॉजिटिव रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे, रिमेनिंग सभी नेगेटिव रहेंगे। तो अभी क्या है हमारा 90 माइनस थीटा विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? पूरे वैल्यूज कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। देयरफॉर हमारे सभी वैल्यूज कैसे आए? कहां पे भी नेगेटिव आए क्या? नेगेटिव कहां पे भी नहीं आया। अब मैं नेक्स्ट किसमें जाऊंगा? अभी 90 प्लस थीटा को जाऊंगा, तो उसमें देखो क्या होता। सिमिलरली 90 प्लस थीटा में चले गए तो क्या होता? व्हाट वी गेट देयर, लेट्स सी। अभी ये तो क्या हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। सिंपल इधर क्या याद रखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट में आता है चेक करना है, राइट। साइन उसका पॉजिटिव साइन आता है या नेगेटिव साइन है बोल के साइन चेक करने के लिए फर्स्ट चेक इन विच क्वाड्रेंट इट इज लाइज। 90 माइनस थीटा एक कौन सा क्वाड्रेंट में आता है पहले वो याद रखना है। फॉर 80 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, लेस देन 90 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा मीन्स इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव रहेंगे कौन से नेगेटिव रहेंगे वो याद रखना है। नेक्स्ट 180 प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। सिमिलरली 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे ये याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट चेक करना है, उसका साइन कौन सा आता है चेक करना है, बाद में 90 मल्टीपल ऑफ 90 चेक करना है। 90 है, 90 के साथ 1 लिए तो ऑड नंबर आया तो क्या होता? साइड से कॉस को चेंज होता। ऑड आया तो इवन नंबर आया यहाँ पे 2π/2 रहा तो क्या होता? सिंपल याद रखो, हॉरिजॉन्टल लाइन में इट इज 0 एंड 180 डिग्री पे साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। टी रेशियो से को रेशियो नहीं होगा। ओनली ये जो वर्टिकल लाइन पे हमारा वर्टिकल है दैट इज π/2 दैट इज 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे क्या होता वैल्यू? टी रेशियो से को रेशियो कुछ चेंज होता, दैट इज साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, टैन टू कॉट, कोसेक टू सेक, सेक टू कोसेक, कॉट टू टैन। यहाँ पे क्या है? साइन एंड कॉस बोथ आर व्हाट? बोथ आर टी रेशियोज एंड को रेशियोज। साइन कॉस का जो कंफ्यूज नहीं कर लेना यहाँ पे, सर साइन के साथ कोसेक आता बोल के ऐसा एक बात दिमाग में आता आपको, दैट इज रेसिप्रोकल। वेयर हियर साइन एंड कॉस आर टी एंड को रेशियो, टैन एंड कॉट आर टी एंड को रेशियो, वेयर सेक एंड कोसेक आर टी एंड को रेशियो। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज वेल एज को रेशियोज, राइट। मालूम होंगे भी ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे बोल के? मल्टीपल आया, ऑड मल्टीपल आया इसका तो क्या होता? वो साइन से कॉस को कन्वर्ट होता, कॉस से साइन को कन्वर्ट होता। और क्वाड्रेंट चेक करना है यहाँ पे। ये दो चीज आप दिमाग में रखना है। मैं और एक बार रिपीट करूंगा, क्या याद रखना है? डिसाइड द क्वाड्रेंट इन विच द गिवन एंगल लाइज एंड डिसाइड द अलजेब्राइक साइन ऑफ अ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग ASTC रूल। अभी बताया था मैंने, ASTC रूल लेके उसका साइन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है। बाद में वो मल्टीपल ऑफ π/2 ऑड है इवन है चेक करना है। ऑड रहे तो T2 को रेशियो चेंज होता, इवन रहा बोले तो साइन साइन ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट 190 प्लस थीटा के लिए चले जाएंगे। क्या होता देखेंगे यहाँ पे। Yes, when 90 plus theta it is. In previous you have studied 90 minus theta which is in the first quadrant
whereas in 90 plus theta, which lies in second quadrant, right? One right angle triangle is first and one more is in second quadrant. It is 90 plus theta, right? Now let us consider again a circle with center O, where P and P dash are the 2 points lies on a circle, and PM and P dash M dash are perpendicular to x-axis here, where R is a radius as usual. Now let us see angle XOP equals to theta. Angle XOP equals to what? Theta. And angle XOP dash is 90 plus theta. And angle OP dash M dash, angle OP dash M dash is also theta, it is, right? Therefore, the triangle P dash M dash O, the triangle P dash M dash O, which is equals to the triangle OMP. This triangle is equals to what? This triangle, right? Therefore, P dash M dash, which is equals to P dash M dash, which is equals to OM. Got it? And OM dash, which is equals to minus PM, because it is in negative x-axis, right? OM dash, which is equals to PM, and OP dash, which is equals to OP. This OP dash, which is equals to this OP. Now let us consider sine 90 plus theta first. Ratio of sine 90 plus theta is, it is here, perpendicular, hypotenuse, it is base, right? It is an angle opposite is hypotenuse, right? It is opposite side. 90 plus theta, this angle is 90 plus theta. Therefore, opposite side, hypotenuse and base is there. Now consider ratio of sine. That is nothing but perpendicular divided by hypotenuse, that is P dash M dash upon OP dash. P dash M dash upon OP dash. Already we have P dash M dash equals to OM in this, and OP dash equals to OP, right? Now OM by OP, let us consider in this right angle triangle. OM by OP is nothing but whatever, trigonometric ratio of cos theta. That is nothing but OM by OP is what? Cos theta. Next, cos 90 plus theta. It is base by hypotenuse. OM dash upon OP dash. OM dash upon OP dash, which is equals to OM dash equals to what here? Minus PM, and OP dash equals to OP. Now minus keep as it is here. PM by OP. PM by OP, which is perpendicular by hypotenuse, is what? Sin theta, ratio of sin theta, that is therefore minus sin theta. Similarly, tan 90 plus theta. Tan 90 plus theta is nothing but perpendicular by base, that is P dash M dash upon OM dash. P dash M dash upon OM dash. Therefore, P dash M dash is OM, and OM dash, which is equals to minus PM, right? Now, OM minus as it is OM by PM. OM by PM, which is nothing but base by perpendicular, that is nothing but cot theta, it is minus cot theta. Similarly, if we find cosec 90 plus theta, which becomes plus sec theta, sec 90 plus theta, which becomes minus cosec theta, cot 90 plus theta, which becomes minus tan theta, right? इस सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, इससे पहले क्या करते हम 90 माइनस थीटा लिए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? बाय ASTC रूल, याद रखना है ASTC रूल. ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी. ऑल स्टूडेंट्स मीन्स all sin to sin, cos, tan, cosec, sec, cot, all are positive in first quadrant, whereas sin and cosec are two positive in second quadrant. Tan and cot are two positive in third quadrant. C, cos and sec are two positive in fourth quadrant. यहाँ पे पूरे 6 के 6 रेशियोज फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे. यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, रिमेनिंग नेगेटिव. यहाँ पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, रिमेनिंग नेगेटिव. फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहेंगे, रिमेनिंग नेगेटिव रहेंगे. देयरफॉर यहाँ पे देखो सी, साइन एंड कोसेक
सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो 90 प्लस थीटा विच लाइज इन इट इज 90 प्लस थीटा दिस मच प्लस थीटा दिस एंगल इज थीटा राइट 90 प्लस थीटा दिस मच एंगल plus हो रहा which lies in second quadrant. Therefore in the second quadrant sine and cosec are positive. See sine is positive cos theta, cosec 90 plus theta is positive sec theta. Now except these two remaining all are negative. Cos 90 plus theta is minus sin theta, tan 90 plus theta is minus cot theta, sec 90 plus theta is minus cosec theta, cot 90 plus theta is माइनस tan थीटा. आपको क्या याद रखना है यहाँ पे फर्स्ट ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है वो चेक कर लेना. आइदर इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में चेक करना कि बाय यूजिंग एएसटीसी रूल उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है फर्स्ट वो चेक कर लेना राइट. उसके बाद क्या करते हैं ये साइन टू कॉस चेंज होता क्या साइन टू साइनिच रहता, कॉस टू साइन चेंज हो रहा क्या कॉस टू कॉसिच रहता, टैन टू कॉट चेंज होता या टैन टू टैन रहता, कोसेक से सेक कुछ चेंज होता क्या कोसेक से कोसेक्स ही रहता, और सेक टू कोसेक कन्वर्ट होता क्या सेक टू सेक ही रहता, एंड कॉट से टैन को कन्वर्ट होता या कॉट टू कॉट ही रहता. वो क्या करना आप n पाई बाई 2 n और नेचुरल रहा और नेचुरल नंबर रहा 1 3 आया तो वो क्या होता है टी रेशो से को रेशो चेंज होता राइट. सिंपल याद रखो 90 प्लस आर माइनस थीटा. अभी मैं यहां पे लिख दूंगा ये सी 90 प्लस आर माइनस थीटा एंड 270 प्लस आर माइनस थीटा. टी रेशो टू को रेशो चेंज होता, टी रेशो टू को रेशो चेंज हो जाता राइट. 90 प्लस थीटा रहने दो और 90 माइनस थीटा रहने दो. 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, 90 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आता, 270 माइनस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आता, 270 प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आता. ये जो वर्टिकल लाइन है ना वाई एक्सिस का ये लाइन पे ये क्या है ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इट इज 90 डिग्री. एन पाई बाई 2 क्या बोल रहे हैं एन इज ऑड मल्टीपल रहना 1 3 रहा वो टाइम में क्या होता साइन से कॉस को, कॉस से साइन को, टैन से कॉट को, कॉट से टैन को, कोसेक से सेक, सेक टू कोसेक कन्वर्ट होता है यहाँ पे. ये चीज याद रखना राइट. अभी आगे के क्या करते जाएंगे हम. अभी आज साइन 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा के बारे में देखें, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के बारे में देखें राइट. फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया. कल क्या करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी करेंगे. दैट इज 180 माइनस थीटा और यू कैन टेक 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा. कौन सा एक टर्म देखेंगे. सिमिलरली क्या रहेंगे 360 माइनस थीटा भी लो आप और 360 प्लस थीटा लो. सभी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही इसी तरह रहेंगे. आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम इसमें पूरे वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक. 90 प्लस थीटा का क्या होता है 90 माइनस थीटा, 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस और 360 माइनस थीटा के लिए. तो ओवरऑल क्या है ये कब टी रेशो से को रेशो कुछ चेंज होता वो एक चीज याद रखना. और कौन सा क्वाड्रेंट में आता वो बाय यूजिंग एएसटीसी रूल से वैल्यूज फाइंड करने का कोशिश करना राइट. दिस मच इज इन दिस लेक्चर. Next we will see tomorrow the other allied angles with respect to this trigonometrical functions of allied angles. Thank you.